Hare Krishna, Vaheguru. Vaheguru, Hare Krishna, Hare Krishna. You know, there is nothing more precious than a silent togetherness. A silent, not loneliness, but togetherness. That's what the heart is seeking in this entire life. My married life is like Satyug, you know. It's silent togetherness. No arguments, no debates, no controversies. By birth, my wife happens to be a Christian. By birth, I happen to be a Hindu. People ask, are there any issues? There are no issues in this world. What to talk of Christianity and Hinduism and Sikhism and Islam? There is no debate, there is no argument. Silent togetherness. That's called satsang. When we speak, it's a formality. When we're sitting together quietly, it's bliss. Speaking is a formality. Speaking is indicating. If it is indicating, if it's pointing, if it's reminding the value of silent togetherness, then speech is worth it. You don't speak in love. Come quiet in love. Bhagavad Gita, Sri Guru Granth Sahib, Bible, they are pointers towards silent togetherness, silent existence. Existence in togetherness, not in loneliness. Because togetherness is solitude, it's not loneliness. Each one of us is seeking a company, but we mess up the company by speaking. Company is necessary. Company alone can bring about, can give rise to, give birth to love. This company can be between any two people. My mother was a morbidly passionate lover. She loved me like morbidly, passionately. That is beautiful. That's also to be experienced. But with my father, the relationship was so beautiful, silent togetherness. He would never disturb me, I would never disturb. But togetherness is necessary. Love, that is love. Guru Arjan Dev writes a letter to his father. तन सुदेश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हो कोली जियो कोल कुमाई गुरु सज्जन मीत मुरारे जी.
Try to understand the love, that love whom we equate with between. When we talk about love, we are only conceptualizing a man and a woman. And this is now Guru Arjan Dev talking to his father. To his father, not even to a guru, but to his own father. He says, Tan sudes jahan tu vasya. मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो. So this love can exist between a mother and a child. It can be between a man and a woman. It can be between Krishna and Arjun. It can be between Radha and Krishna. This is just togetherness. Tan sudes jahan tu vasya. It's a feeling of awe. It's a feeling of amazement. It's a feeling of hoko ligio kol kumai. Means I melt into you. तू हवा के जैसे घुल जाता है मुझ में. मुझको अपना घर मिल जाता है तुझ में. That's that love. जहां के दो दो ना रह जाएं, एक हो जाए. हुको लीजियो कोल कुमाई. गुरु सज्जन मीत मुरारे जी. I mean, in your presence, I melt into you. It can be togetherness between any two people, between a brother and a sister, between a mother and a son. Kapil Muni talking to Devahuti, Sri Ramakrishna talking to Vivekananda, Vivekananda talking to Sri Ramakrishna. Vaheguru. Sri Krishna tells Arjun, Sarva Guhetamam Bhuya Shrinu. Me Paramam Vachaha. मैं तुम्हें अल्टीमेट ट्रूथ बताता हूं अर्जुन. अल्टीमेट ट्रूथ. सारी भगवत गीता को अब छोड़ दो, वो तो तुम्हें समझ आई नहीं है. हरे राम. सर्वगुह्यतमम भूय शृणु. एक बार फिर तुमको सबसे प्रोफाउंड बात बता दे. अपनी परमम वचः, मेरे जो अल्टीमेट ट्रूथ है मैं तुमको बता दूं. क्या बता देता हूं? मन मन भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. मामे वाश वैश्यसी सत्यम ते. मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मेरा ही रूप हो जाओगे. मुझे बस अनन्य भक्ति से प्रेम करो, तुम मेरा ही रूप हो जाओगे. मन मन भाव मद भक्त मध्याजी. मन मन भाव, मेरे ही जैसे सोचा करोगे, मेरे ही जैसे सोचा करो, मुझसे प्रेम करो. अब प्रेम को जो हम सोचना शुरू कर देते हैं, that is our own perception. There is nothing wrong about it, but it is our own individual perception. Nothing wrong. Love is love. It can be between any two people. बस मुझको अपना घर मिल जाता है तुझ में. That togetherness is required. बाकी नहीं कुछ पर दिल न माने, दिल की बातें दिल ही जाने. बाकी नहीं कुछ मतलब और तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है. परिवार भी है, लाइवलीहुड भी है, प्रोफेशन भी है, कारें कोठियां भी हैं, पर दिल ना माने, दिल की बात दिल ही जाने. दिल क्यों नहीं लगता? हरे कृष्ण. दिल को एक टुगेदरनेस चाहिए.
लवफुल साइलेंट टुगेदरनेस, जहां दो ना रह जाएं, एक हो। दूजा पाओ विकार, जहां दो हैं वहां तो बर्तन खड़केंगे ही। इसलिए फिजियोलॉजिकल है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होनी। दो लोग रहते हैं, क्यों ना लड़ेंगे? क्यों ना लड़ेंगे, फिजियोलॉजिकल। कोई लोग बोलते हैं हमारी बहुत लड़ाई होती है, वो होनी चाहिए। दो बर्तन है, क्यों ना लड़ेंगे, खड़केंगे ही। कोई भी हस्बैंड वाइफ हो सकता है जिसकी लड़ाई ही नहीं होती? संभव ही नहीं। ठीक है, मेरी नहीं हो, कभी नहीं। क्योंकि यहां दो बर्तन है नहीं ना, दो बर्तन नहीं रहते। बचपन से टीचर ने उंगली रखना सिखाया, मगर हमको उंगली रखनी नहीं आई। बचपन से, प्राइमरी क्लास से टीचर बोलते साइलेंट, मगर हमको साइलेंट ही नहीं होना है। अरे राम, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों पर ही मैं हूं जिंदा। हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम अगर हम हो जाते। कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। ये दूजा पाव ही सारी जिंदगी की सफरिंग है। चाहे इसको अद्वैत से सीखो या द्वैत से या विशिष्ट अद्वैत, चाहे शंकराचार्य से सीखो या रामानुजाचार्य से सीखो या मध्वाचार्य से सीखो, वननेस ही चाहिए। और वननेस बिना प्रेम के कैसे संभव है? हरे राम, हरे राम। फीड, फोस्टर, नरिश, व्हाट? प्रेम। प्रेम को बढ़ाओ, हद में रहकर हद से ज्यादा इश्क करना इश्क है। हद में रहकर कहाँ? जहां बैठे हो वहीं पे ही। गुरु विल से स्टॉप कमिंग टू मी, let your love grow so much that I am forced to come to you. मैं ही तुम्हारे दिल में आके बस जाऊंगा, मतलब मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। तुमको मुझे मेरे पास आने की जरूरत ना पड़ेगी। जब आपके अंदर से ऐसे भूख निकलेगी, भूख निकले, सो दर तेरा क्या, सो कर क्या, चित पे सर्ब संभाल ले। तू चीज क्या है? तू ऐसा कैसे है? तेरी बात कैसे बनी हुई है? तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है? तू ऐसा कैसे है? जब आपके दिल से ये आवाज निकलेगी तो पता चलेगा गुरु अर्जन देव क्या बोल रहे हैं अपने फादर को। तन सुदेश जहां तू वस्या। तू किस स्टेट ऑफ माइंड का बना हुआ है? तू बना कैसे हुआ है? व्हाट इज योर मेकअप? तुम्हारी बात कैसे बनी हुई है? तुम ऐसा कैसे है? और फिर अंदर से जब एक्सपीरियंस आएगा तो शायद वो बचपना भी जाग जाएगा, जब तो बोलेगा तू भी मेरे जैसा पागल कैसे है। फिर तो हम दोनों एक ही जैसे पागल हो गए। तू भी मेरे जैसा पागल कैसे?
फिर तो आपको भी तो साथ में पागल होना ही पड़ेगा ना। पागल कौन होता है? ज्ञानी तो हो नहीं सकता, उसको आता जाता कुछ नहीं है। दो ही तरीके हैं जीने के, एक तुम्हें नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। तुम्हें प्रेम करना नहीं आता, मुझे प्रेम के सिवा कुछ नहीं आता। प्रेम के सिवा कुछ नहीं आता। जिसको प्रेम आता है उसको दुनिया सर्वज्ञ बोलना शुरू कर देती है। ओमनिशियंट के मतलब इसको सब कुछ आता। आता जाता उसको कुछ भी नहीं है। उसको प्रेम के सिवा कुछ नहीं आता। वो कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो कोई सेवा नहीं करता, वो कोई काम नहीं करता। वो केवल प्रेम करता है, क्योंकि एक ही तो काम है। काम ही तो काम है। हरे राम। पर उसके अंदर कोई क्लैरिटी है, उसके अंदर कोई गिल्ट्स नहीं है। उसने कोई काम को एक वासना नहीं बना के रखा हुआ। काम उसका आसन है। वासना होती है आसन जब हिल जाता है, जब कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती है, उसको वासना बोलते हैं। उसके अंदर कोई कंफ्यूजन्स नहीं है। काम उसका आसन है। स्थिर सुखम आसनम। हमेशा प्रेम में है, नशे में है। नशा ही नशा हो क्या हो तुम। भूतों के खुदा हो क्या हो तुम। खुदा की अदा हो क्या हो तुम। वो कुछ ऐसी चीज होता है। दैट इज वॉट गुरु अर्जन देव सीज इन हिज फादर। तुम क्या हो। एंड श्री कृष्णा इज फोर्सिंग दिस ऑन अर्जुन, कि तुम भी गुरु अर्जन बन के देखो ना अर्जुन। गुरु अर्जन बन के देखो अर्जुन, और देखो मैं क्या हूं। मन मन भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। कृष्णा इज आस्किंग कि तुम भी ऐसे जाग जाओ ना, जैसे गुरु अर्जन देव जाग गए थे गुरु रामदास को देख के। जैसे राधा जगी हुई है मुझे देख के, तुम भी जाग जाओ। क्योंकि वो तो अभी अपने आप को अर्जुन ही समझता है, वॉरियर ही समझता है। वो अभी कृष्णा नहीं बना। पर अर्जुन देव तो बन गए हैं कृष्णा। वो तो गुरु बन गए। जब भी उन्होंने कहा तान सुदेश जहां तू वस्या, तो गुरु अर्जुन देव को उन्होंने गुरु गद्दी दे दी उसी टाइम ही। गुरु रामदास बोला तुम ही नेक्स्ट गुरु, तुम ही हो। क्योंकि हो कोल लीजियो, कोल कुमाई। मैं तो बस मेल्ट हो गया हूं तुम में, मैं नहीं रह गया। और ये संभव कहाँ है किसी और तरीके से बिना प्रेम के। हरे राम। प्रेम ही तो एक फॉरबिडन एप्पल है, जो हमने खाया हुआ है बचपन से, कि नहीं करना, प्रेम नहीं करना, मर जाएंगे। यस, जो डूबा सो उतरा पार। मर जाओ तो फिर आप ना रह जाएंगे। हरे राम। जो भी इंटेलेक्चुअल है वो कहेगा ये सब भक्ति अध्यात्म ये कुछ नहीं है, तो मरने का तरीका है सुइसाइड। वेरी फाइन, तो फिर खो जाओ ना। Till the time you do not die, you cannot be what you need to be. Jesus would put it in a esoteric way. He would say, until a man is born again, he will not see God. और हमारे शास्त्र बोल देंगे आदमी तो द्विज है। ह्यूमन बीइंग इज अ द्विज। देखो कितना सीक्रेटली बोल दी वही बात, कि विलिंगली मर जाओ। लोग कहते until a man is born again। बॉर्न अगेन तो तभी होगा जब मरेगा तो मर जाओ। उसके बाद यू विल नॉट नाउ बी अ न्यू मैन। until a man is born again,
he shall not see light. And Sanskrit Shastras would say human being is a Dvija. Dvija. Dvija means twice born. Once from the womb of the mother and then the womb of the Guru. जब गुरु की कोख से वो जन्म लेता है तो उसको लाइट दिख जाती है, और जब लाइट दिख जाती है फिर तो मैं और तुम अगर हम हो जाते कि हर मुश्किल आसान हो जाती, कितने हंसी आलम हो जाते। कितने हंसी आलम का मतलब क्या है कि स्वर्ग दिख जाता। किसी को मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारा कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे। हम ऑलरेडी नर्क में ही रह रहे हैं, और मरने के बाद क्या होता है, लेट अस नॉट डिबेट। जीते जागते जो मर जाता है, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है, उसको नशा आ जाता है। जो प्रेम में मर जाता है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वहां की धार, जो उतरा डर डर के उतरा कि मैं बचाना है अपने आप को, सो डूब गया। तो हाथ पैर मारता रहा, पर कब तक मारता रहेगा, थक जाएगा, मर जाएगा, डूब जाएगा। और जो डूबा, जिसने डाइव मार दी, वो उतरा पार। और डाइव कैसे मारी जाए, विलिंगली तो नहीं मारी जाती, मगर टाइम के साथ राइपनिंग हो जाती है। साइलेंट टुगेदरनेस, सत्संग सबसे प्रेशियस है। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। राइपनिंग तो अपने आप ही होती है, कोई जबरदस्ती नहीं होती। सो टाइम जो है ना, सबसे बड़ा हमारा मित्र है। पर टाइम को तो काल कहा गया है, मृत्यु कहा गया है। मृत्यु ही है जब तक प्रेम नहीं हुआ, और जब प्रेम हो गया तो यही राइपनिंग करेगा। टाइम के बिना राइपनिंग कैसे होगी। कोई भी कच्च पकाई ओथे पाए, नानक गया जापे जाए। कोई भी कच्चा फल पकता कैसे है, फैक्ट्रीज में नहीं पक सकता, किसी प्रोसेस से नहीं पक सकता। आर्टिफिशियली राइपन्ड फ्रूट्स आर नॉट हेल्दी। टाइम के साथ जब राइपनिंग होगी तो उसी को ही राइपनिंग बोला जाएगा। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। ये जो अध्यात्म है, ये जो सत्संग है, धीरे 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 साइलेंट कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता। हरे राम।